Good morning, students. In last lecture, we discussed about equilibrium of forces and equilibrant. And in last session, we also discussed relation between resultant and equilibrant, that is E equal to minus R. Now, in this lecture, we are going to discuss free body diagram. Free body diagram is denoted as FBD, and free body diagram is also called isolated body diagram. And free body diagram is useful in problem involving equilibrium of forces. That is, free body diagram equilibrium of forces से जुड़ी problem में useful है. So, first of all, before discussed free body diagram, we are going to discuss set of forces, that is contact force and body force. So, first of all, what is contact force? The contact force, और इसको कि हम लोग surface force भी कहते हैं, represents the force that exerted by one body on another body through the point of contact. That is, contact force और surface force उस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि संपर्क के माध्यम से, दैट इज कांटेक्ट के माध्यम से एक बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पर लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स इज द कांटेक्ट फोर्स एंड ऑल्सो लेट अस कंसीडर ए स्फीयर ऑफ वेट W रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन and exerts a downward force equivalent to its weight at the point of contact C. And for the sphere to remain in a state of equilibrium, the horizontal plane also exerts an equal and opposite force on the sphere, which is called as reaction force acting upwards. Now, what is body force? The body force is the force that is exerted by one body to another body that lies at a distance. मान लिया कि दो मैग्नेट है जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे, मान लिया कि x डिस्टेंस पे रखा हुआ है. दैट इज, इनके बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. इसके बावजूद ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है. सो दिस टाइप फोर्स इज कॉल्ड बॉडी फोर्स. Also, for example, gravitational force is also a body force. In gravitational force, there is no physical contact between the bodies under considerations, because gravitational force is a force that attracts any two objects with mass. We call the gravitational force attractive because it always tries to pull masses together. It never pushes them apart. So, इस तरह से मैंने contact force and body force को explain किया. Now, what is free body diagram? Free body diagram किसी situation पर, किसी वस्तु पर कार्य करने वाली सभी forces के relative magnitude and डायरेक्शंस को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है. और किसी भी स्ट्रक्चर का फोर्स एनालिसिस स्ट्रक्चर के एक हिस्से के इक्विलिब्रियम पर विचार करके सिंप्लीफाइड वे से किया जाता है, सो दैट इस भाग को अन्य बॉडी के साथ कांटेक्ट के बिंदु पर अलग अलग अप्लाइड फोर्सेस, सेल्फ वेट और रिएक्शंस को दिखाते हुए खींचा जाता है. Hence, resulting diagram is known as free body diagram. That is, resulting diagram को free body के रूप में जाना जाता है. Now, in a free body diagram, all the supports like walls, floors, hinges, etc. are removed and placed by the reactions which these supports exert on the bodies. That is, in a free body diagram, सभी सपोर्ट्स को हटा दिए जाते हैं और उन रिएक्शंस को रिप्लेस किया जाता है जो ये सपोर्ट्स बॉडी पर एक्सर्ट कर रहे होते हैं.
Now, what is free body diagram? For the sake of convenience, splitting up the body or string in two or more than two parts after consideration of all internal and external forces acting upon the body known as free body diagram. Hence, सुविधा के लिए, that is for the sake of convenience, बॉडी पर कार्य करने वाली सभी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज पर विचार करने के बाद बॉडी या स्ट्रिंग को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है. Here, internal forces are forces which hold together the particles of the body and help it to be rigid, that is not deformed. That is, internal force ऐसा फोर्स है जो बॉडी के पार्टिकल्स को एक साथ रखती है और रिजिड होने में मदद करती है. दैट इज, बॉडीज डू नॉट डिफॉर्म अंडर इंटरनल फोर्सेज. मान लिया कि एक बार के छोर पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अप्लाई किया जा रहा है. हेयर, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज बार डू नॉट डिफॉर्म्ड, दैट इज बार जो है वो रिमेन्स अनडिफॉर्म्ड रहता है. नाउ, external forces are forces which act on a body or system of bodies externally, that is applied from outside. For examples, all the supports like walls, floors, hinges, etc. are external forces. Now, let us explain free body diagram with examples. For example, a sphere resting on a frictionless plane surface. Hence, the force acting on the sphere when isolated from the surface. जब इस स्फीयर को इस सरफेस से अगर हम अलग करते हैं, इस दोनों को अलग अलग हम दिखाते हैं, तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं. सो उस केस में इस स्फीयर पे जो पहला फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो W एक्ट हो रहा होगा, जो कि वेट ऑफ द स्फीयर के बराबर होगा. एंड सेकेंड फोर्स जो एक्ट हो रहा है, रिएक्शन फोर्स R एक्ट हो रहा है, विच एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. These reactions are acts upwards normal to the surface. Now, second example में हम देखते हैं, a circular roller of weight W hangs by a string and rests against a smooth vertical wall. Hence, the forces acting on the roller when isolated from the supports. जब ये रोलर सपोर्ट से अलग होता है तो उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि रोलर पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है. दैट इज, इसका ये FBD हो जाएगा. सो पहला फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो W एक्ट हो रहा है, जो कि किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द रोलर के बराबर होगा. सेकेंड फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो रिएक्शन फोर्स RC एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C with the wall. Hence, reactions will be normal to the wall as it is smooth. And tension T in the string along B. And तीसरा फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो टेंशन T स्ट्रिंग में एक्ट हो रहा है जो BA के along है. यहाँ पे मैंने बताया कि अगर मेरा स्मूथ वाल है तो रिएक्शन जो एक्ट करेगा वो नॉर्मली एक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है RC जो एक्ट हो रहा है वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है. बट अगर मेरा वाल जो अगर रफ फ्लोर होगा, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट W leans against a smooth wall and rests on a rough floor. So in this case, the force acting on the ladder when it is isolated from the wall and floor. यहाँ पे जब हम लैडर को, दैट इज सीढ़ी को, अगर हम फ्लोर और वाल से अलग करते हैं, दैट इज आइसोलेटेड करते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होता है उस लैडर पे वो मेरा FBD कहलाता है. एंड इन दिस केस पहला फोर्स जो एक्ट होगा वो W एक्ट होगा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लैडर एंड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लैडर. दैट इज लैडर के मिड पॉइंट से
मेरा जो W फोर्स होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो कि लैडर के वेट के बराबर होगा। नाउ सेकेंड फोर्स जो एक्ट होगा वो मेरा रिएक्शन फोर्स RB एक्ट होगा, that is reaction force RB of the wall, and this acts right angles, that is normal to the wall as it is smooth, since यहाँ पे wall smooth है। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो फोर्स एक्ट होगा वो रिएक्शन फोर्स RA एक्ट होगा at the ground, as the ground is rough so it is acts inclined not normal to the ground। चूंकि यहाँ पे ग्राउंड जो मेरा है वो रफ है, दैट्स वाई यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो नॉर्मल फोर्स ना होके वो इंक्लाइंड फोर्स एक्ट होगा। बट इन केस ऑफ स्मूथ वॉल जो मेरा रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा वो नॉर्मली एक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज टू स्फीयर्स P and Q placed in a vessel. Let us consider a vessel in which two steel balls A and B are kept. मान लिया कि इस वेसल में दो स्टील बॉल A and B रखा गया है। So the balls A and B have weight W1 and W2 and दोनों का वेट दिया हुआ है W1 and W2 respectively. The balls are in contact with the vessel at the points C, D and E. ये जो दोनों बॉल्स है वो वेसल के कांटेक्ट पे है एट पॉइंट C, D एंड E एंड आर इन कांटेक्ट एट पॉइंट F, और ये एक दूसरे से कांटेक्ट है जो पॉइंट F पर एक दूसरे से कांटेक्ट है। सो इन दिस केस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर विल बी एक्शन एंड रिएक्शंस, दैट इज पॉइंट A पे मेरा एक्शंस एंड रिएक्शंस क्रिएट होगा। नाउ remove the ball A and B from the vessel and shows the reactions acting on the ball A and B. अब हम इस बॉल को इस वेसल से बाहर निकालते हैं एंड दोनों पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है या दोनों बॉल पे कौन कौन सा फोर्स शो करेगा उसको हम लोग दिखाते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, FBD बोलते हैं। सो फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्फीयर P। सो पहला फोर्स जो एक्ट होगा वो वेट W1 एक्ट होगा ऑफ ए स्फीयर एक्टिंग डाउनवर्ड्स थ्रू इट्स मास सेंटर। नाउ सेकेंड फोर्स जो एक्ट होगा वो रिएक्शन RC टुवर्ड्स राइट, दैट इज नॉर्मल टू दी वर्टिकल वॉल सरफेस। नाउ थर्ड फोर्स जो एक्ट होगा वो रिएक्शंस RD होगा अपवर्ड नॉर्मल टू दी बेस, इस बेस के चलते इस बॉल A पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स RD एक्ट करेगा। नाउ रिएक्शन फोर्स RF ऑफ द स्फीयर Q ऑन स्फीयर P एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट F, दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट F है, सो दैट Q द्वारा P पे रिएक्शन फोर्स जो एक्ट होगा वो RF एक्ट होगा एंड दिस एक्ट्स इन ए डायरेक्शंस normal to the surface, that is along the line AB joining the mass centers of the sphere. Now forces acting on Q पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा इसको हम देखते हैं। पहला फोर्स जो एक्ट होगा वो वेट W2 एक्ट होगा एक्टिंग डाउनवर्ड्स थ्रू इट्स मास ऑफ सेंटर B, एंड सेकेंड फोर्स जो एक्ट होगा वो रिएक्शन फोर्स RE एक्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट because normal to the vertical wall surface. Now थर्ड फोर्स जो मेरा एक्ट होगा वो रिएक्शन RF एक्ट होगा ऑफ स्फीयर P ऑन स्फीयर Q, दैट इज स्फीयर P द्वारा स्फीयर Q पे जो फोर्स एक्ट होगा वो नॉर्मल फोर्स RF एक्ट होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट F, and this acts in a directions normal to the surface, that is along the line AB joining the mass center of a sphere. Here reactions of a sphere P on a sphere Q and reactions of a sphere Q on a sphere P are equal in magnitude, that is RF जो एक्ट कर रहा है P पर Q के कारण एंड Q पर P के कारण वो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बट अपोजिट एंड डायरेक्शंस एंड आर कोलिनियर। सो
when both the spheres are taken together, अगर दोनों स्फेयर को हम अगर साथ में दिखाते हैं, दोनों स्फेयर का FBD साथ में दिखाते हैं, तो these reactions cancel and do not appear in the FBD. So फाइनल जो मेरा, अगर हम दोनों को साथ में FBD दिखाते हैं, उसमें मेरा ये जो रिएक्शन फोर्स RF है वो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. दैट्स वाई ये इसमें इसको नहीं दिखाया जाएगा. हेंस फ्री बॉडी डायग्राम इज ए डायग्राम which shows the forces on the body free of another body. Hence, for the sake of convenience, splitting up the body or string in two or more than two parts after consideration of all internal and external forces acting upon the body known as free body diagram. So friends, in next lecture, we discussed Lami's theorem. So friends, thank you so much for watching this video. Thank you.